किस किस को लगता है जैसे ही हम किचन में जाते हैं वी फील स्ट्रेस? यू आर राइटिंग अ बुक और यू आर लिसनिंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो एंड समबडी सेज दाल कहाँ रखी है, मिल नहीं रहा है, एंड यू हैव टू गो टू द किचन, ढूंढो उसको, दो, और फिर जब आप वापस आओ तो जिस थॉट में आप थे वो थॉट रही नहीं। कि अगर आप किसी की नेचर को पहचानना चाहते हो, किसी के घर को पहचानना चाहते हो, या उस घर में प्यार और प्रेम है कि नहीं है ये पहचानना चाहते हो, तो बड़ा आसान है। So, as you all know, we all gather here for the Women Forum session on the topic 5S Kitchen Management. It gives me an immense pleasure to introduce our guest, Chef Lata Tandon. Chef Lata Tandon is an international chef who holds some of the most prestigious awards, including Guinness World Record holder for longest cooking marathon of 87 hours and 45 minutes. She turns out to be the only woman in the world to achieve this record. Topping that up is the doctorate by World Record University London. She has also achieved the International Culinary Award in London. She holds many certifications from Chef Academy of London, UK. Thus have international work experience. Another feather in her glorious hat is that she is recognized by 7 other world records, including India, Asia and Harvard World Record. First of its kind by a woman chef who loves solo traveling, adventure sports, exploring the undiscovered. Her idea through this expedition is to also encourage women to live her dream and checklist their travel expedition. Thank you so much, ma'am, for your kind consent and valuable time. I humbly invite Chef Lata, and now I request Ms. Soma Roy, IMA member, to present the token of remembrance to Chef Lata. Please give a big round. Hello, good evening to all of you beautiful ladies. So I'm here for 5S Kitchen Management, and first of all, I really thank IMA and the Women Forum for inviting me. And yes, because of you people, I can meet so many beautiful ladies out here. So this is the 5S management, what I'm dealing with today. So let's begin with some interesting questions. ठीक है? If you say, I will make you say yes or no, but if you say, कोई बात नहीं, अपने अंदर ही रखेंगे. If you say, what do you say, girls? If you're bold enough, you can say yes or no boldly, चलेगा? So let's begin with the question. So first question of mine is, have you ever felt stress finding things when it's absolutely needed at the moment? For example, कोई गेस्ट आ गया और एकदम से किचन में जाना पड़ा और कोई ऐसा इंग्रेडिएंट जिसके बगैर वो स्नैक या वो प्रेजेंटेशन कंप्लीट नहीं हो सकता और आपको नहीं मिला हो. So sometimes, was it happened? Yes or no? Yes. Oh, it's a good yes. So bold ladies, come on. Next question is, have you ever mistaken of putting sugar instead of salt in any? No. Oh, okay. So perfect in cooking. Thank you. So third question of mine. Have you ever bought grocery item from the supermarket which was already present with you but you purchased it because आप जानते नहीं थे वो already आपके store में है? Yes. Yeah, it happens. It happens. At that time क्योंकि वो ingredient मिलता नहीं है और हम supermarket जाते हैं purchase कर लेते हैं और बाद में देखते हैं oh my god ये तो already 2 किलो पड़ा हुआ है, oh my god और आ गया. So it's a wastage of time and money. So fourth question of mine. Have you ever struggled to move to and fro in the kitchen for a work? So it's like, no, if you are having a big kitchen, so your OTG is somewhere there, and I'm preparing the batter here, so I have to run to and fro to the OTG to fill that up. So is that happened to you somewhere? Yeah, somewhere to and fro for picking up the pans or picking up the knife somewhere, or a palette knife which was lost and kept at that drawers and have to keep working here. So that happens, right? So, and last question. So have you ever dumped an expensive ingredient? For example, मेरे साथ हुआ है, मैं शेफ हूँ फिर भी हुआ है, I'm telling you, कि एक दिन मैंने चीज केक के लिए क्रीम चीज लिया, so expensive, so amazing, so yummy,
but उसके बाद मुझे कहीं जाना पड़ा. When I came back, it expired and I dumped it. So sometimes it happens. एक ingredient ले लिया but it expired and we just get regret कि यार इतना expensive ingredient था, but I dumped it into the dustbin. When I see the tag, oh my god, that's $500. I'm just wasting it to the bin. So it happens, right? It happens. So this is all I about is if any of your answer is yes, I got many yeses. It's okay. But if any of your answer is yes, definitely you are at a very good session of mine. You're gonna listen. And it happens. It happens with us. We busy ladies. Either we are a home kitchen, housekeepers, or a busy lady or a professional. We do a lot of mess in our kitchens. We do a lot of waste. We don't want that, but it happens. It happens somehow, right? So nothing to get worried. हम चल जाएगा ये सब, ठीक है? So what I want to do in front of you is I'm just recalling a situation, a scenario. 2 years back, I made a world record. Okay. So in that world record, what I did is I came up with a concept of 5S. And what I did is I studied it, and I really want that concept that Guinness should be taken like very smoothly. वो event was huge. मुझे पता था वो huge होने वाला है because longest cooking marathon का मतलब है मैं break करने वाली थी 68 hours and 30 minutes का already made record. That was made by an American male. And it was really tough to break that down. Right? So I was like कि कुछ ऐसा किया जाए that this record should be very smooth and free flow. And Guinness के norms ये थे that not a single item should be wasted. Because they used to keep the record. Whatsoever you are cooking, is that being used or not? So it was the norms. So I was forced to do all that. So what I did was, first of all, I arranged a kitchen. I arranged a kitchen with 8 burners. It was all together all around me. So there was a kitchen, there was a knife station with many sharp knives, and there was a station where I kept few spices according to my cuisine, what I decided. I decided my menu once and for all, never changed that menu. And my menu was, it was like cooking 100 kgs rice at a time in these 4 burners, and near about 25 to 30 liters of gravies were in front of me. In that I have to cook. I don't have to stop for a minute. So that was the longest cooking marathon. So what I got in applying 5S to it, is that I managed a menu. I managed a supply unit so that I can get that supply smoothly, and I managed a place from where the food has to be distributed smoothly, peacefully. And I distributed that food to 22,000 people and more. And they ate it peacefully. And what the main achievement I got from 5S applying to my Guinness is not a single kitchen hazard. मैंने एक भी डिश वेस्ट नहीं की. इवन मेरा एक भी चावल का दाना जमीन को टच नहीं किया. I never wasted a grain of rice in that whole event. Where was it? I'm telling you. So it was at Riva, at my place. And अगर ये 1-2 घंटे की बात होती in a kitchen, आप सभी masters हैं kitchen में, कर सकते हैं. But that was for 87 hours and 45 minutes. So that was an achievement, applying 5S to my Guinness. And because of 5S, the Guinness is now in India and it's unbroken since 3 years. So that's it. So what is 5S? From where does it come from? So it came from Japan. It's a concept of Japan. Obviously, they are having, हमसे ज़्यादा अकल नहीं है, but still, we feel कि they are having good management skills. That's built in Toyota Motors. Why they built? Because they want that workspace to be created as a stress-free environment. People should work
People should be happy. People should be enjoying their work. So that's why Toyota Motors get this concept from. And it is applied in many areas. It was applied in industries, bigger units, bigger corporates and all that. But today we are here to use it in our small, baby, humble, beautiful kitchen of our home. First thing, sort. That means chutney. है ना, छाट के रखना. Second is set in order. That is यथास्थान, मतलब जगह देना किसी चीज को. Third is shine. That means सफाई. सफाई and मैंने उसमें ऐड किया है सुधार. सफाई and सुधार. Fourth is standardize. Standardizing means whatsoever you did in sort, set in order and shine, you have to make it as a rule, a sort of a rule. And fifth is sustain. हम जो भी रूल बनाते हैं वो अगर कंटिन्यू करते हैं तो दैट मेड एज अ हैबिट ऑफ आवर्स एंड दिस इज अ गुड हैबिट. यू मस्ट फॉलो इट. सो वंस एंड फॉर ऑल, फर्स्ट थिंग इज सॉर्ट. अगर हम बोले तो जैसे हिंदी में बोला छटनी, इसके 3 कॉन्सेप्ट हैं. सॉर्ट इज गेटिंग रिड ऑफ अनवांटेड आइटम्स. जो भी हमारे किचन में अनवांटेड चीजें हैं उनको हटाना है. सेकेंड, बी अ मिनिमलिस्ट. कम से कम चीजों में उस किचन में काम होना चाहिए. अगर आपने पुराने जमाने के किचन्स देखे हो, गांव के किचन आज भी देखे हो, दे आर हैविंग सो फ्यू यूटेंसिल्स, सो फ्यू थिंग्स एंड दे आर हैप्पी. उनके घर आप 40-50 लोग भी चले जाओ, देन टू दे आर रेडी टू मेक यू ईट. उनको डर नहीं लगता. और हमारे यहाँ ऑलरेडी हम लोग 2 से 3 डिनर सेट रेडी रखते हैं. उसके बाद भी अगर कोई आता है तो सोचते हैं ये वाला डिनर सेट निकालूं कि नहीं निकालूं उसके लिए. तो इट्स लाइक दैट. सो बी मिनिमलिस्टिक. एंड थर्ड इज सेट अ रेड फ्लैग एरिया. सो दैट्स अ कॉन्सेप्ट व्हाट रेड फ्लैग इज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहती हूं कि हम जमा किसके लिए कर रहे हैं? राइट, एग्जैक्टली. सो मैंने आपको ट्यून किया. ओके, सो हम जमा किसके लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हाँ, क्या ऐसा आपको लगता है कि कल ही कोरोना आ जाएगा और सारी मार्केट बंद हो जाएगी वापस? वो तो कोरोना ने डरा दिया, तो शायद हम थोड़ा सा इकट्ठा करने लगे हैं. बट क्या जरूरत है उसे इकट्ठा करने की? इज दैट नीडेड? इज मार्केट इज बीइंग क्लोज्ड? क्या सब्जी वाला नहीं आएगा कल? अरे नहीं आएगा, एक दिन नहीं आएगा, दाल खा लेंगे, घर में ड्राई प्रोटीन है वो खा लेंगे, सब्जियों की जरूरत नहीं है. तो क्या मतलब व्हाई वी आर हैविंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ जमा करना एट होम? क्यों करके रखते हैं हम जमा? किसके लिए करके रखते हैं हम जमा? मेरे सदगुरु बोलते हैं कि आज के लोगों के पास इतने कपड़े और इतने शूज हैं कि उनको लगता है अगले 7 जन्म का उनको कलेक्शन कर लेना चाहिए. व्हाई वी डू दिस? क्यों करते हैं हम? अब मैं आई एम नॉट अगेंस्ट डूइंग दिस, बट आप ये सोचिए कि जो भी चीजें आप कलेक्ट कर रहे हैं उसको लेने के लिए जाना होता है. फर्स्ट टाइम वेस्ट. सेकंड, उसके लिए मनी यूज होती है. चलो जितना यूज हुआ वो तो ठीक है. तीसरा, जब उसको घर लाते हैं तो उसको जगह चाहिए होती है, उसको जगह में समेटना संभालना होता है. सीजन चेंज होता है, ह्यूमिडिटी होती है तो शायद कीड़े भी लग जाते हैं, शायद उनको मेंटेन भी करना पड़ता है. और वो इतनी ज्यादा जगह लेते हैं, इतना सारा हमारा पैसा होल्ड करके रखते हैं. तो इट्स totally a waste to collect, these things at home. And it is creating a hustle at home. आपके सामने इतनी सारी चीजें जब होती हैं ना, तो that creates a stress. You are very good at your kitchens. लेकिन एक बात बताइए, just a simple questions to you all. Just one single question. किस किस को लगता है जैसे ही हम किचन में जाते हैं we feel stress? Who feels stress in going into kitchen? So it is not कि जाते ही साथ stress होता है. It happens, कोई एकदम से गेस्ट आ गया या कोई चीज की कमी हो गई या कोई इक्विपमेंट नहीं चल रहा है, that gives stress in kitchen. Yeah, because we are whole soul of the family and we have to maintain everything. तो जब हमें मेंटेन करना होता है, हमें हर चीज को सेटिस्फाई करना होता है और हम नहीं कर पाते, that gives stress. सिंपल. बट किचन ऐसी जगह होनी नहीं चाहिए जहां हमें स्ट्रेस लगे, बिकॉज दैट्स द इंजन ऑफ आवर होम. अगर वहां से स्ट्रेस चलेगा ना तो सारे खाने में स्ट्रेस आएगा और सारे लोगों के शरीरों में और दिमागों में भी स्ट्रेस जाएगा. तो दैट
place should be totally stress free. First thing first is getting rid of unwanted items. जो चीजों की जरूरत नहीं है उसको हटा दो. इसके लिए दिल बड़ा मजबूत करना पड़ेगा आपको. राइट. अब दिल मजबूत करने का मतलब ये है कि कई सारी ऐसी चीजें होंगी जो फिकने वाली है, जो आपके काम की नहीं है और वो काफी टाइम से रखी हुई हैं. कम ऑन लेडीज, थोड़ा सा दिल मजबूत करेंगे हम और इस बार अनवांटेड आइटम्स को हटा ही देंगे. सो गेटिंग रिड ऑफ अनवांटेड आइटम्स. बी मिनिमलिस्टिक. और थर्ड, जो रेड फ्लैग एरिया है ना, वैसे ही अंग्रेजों का फंडा है, जापानीज का फंडा है. मैं अगर आपको बताऊं तो अगर मैं इंडियन हूं तो मैं रेड फ्लैग एरिया बनाऊंगी ही नहीं. बिकॉज रेड फ्लैग एरिया इज अगेन कीपिंग दैट प्लेस जहां पे जो चीजें यूज होती हैं, नहीं होती हैं, डाइसी होती हैं, उन चीजों को रखा जाता है. दैट इज रेड फ्लैग एरिया. लेकिन हम, द इंडियन लेडी, 2 दिन में वो रेड फ्लैग वापस अंदर चला जाएगा हमारे किचन में. तो आई डोंट बिलीव रेड फ्लैग एरिया टू बी पुट इन इंडियन किचन्स. मैं एक छोटा सा फैक्ट आप लोगों के साथ शेयर करूं कि अगर आप किसी की नेचर को पहचानना चाहते हो, किसी के घर को पहचानना चाहते हो, या उस घर में प्यार और प्रेम है कि नहीं है ये पहचानना चाहते हो, तो बड़ा आसान है. पहले तो आप देखो कि वो बंदा खाना कैसे खाता है. या बंदा या बंदी, बंदे को मत बदनाम करो. तो बंदा या बंदी खाना कैसे खाता है, वो प्लेट कितने अच्छे से फिनिश करता है या खाने को कितनी इज्जत देता है. दूसरा, वो अपनी प्लेट को ट्रीट कैसे करता है, फ्रॉम खाना परसने से लेके, खाने से लेके, उसको वॉश एरिया में रखने से लेके, एवरीथिंग उसका नेचर बता देगा टॉप टू बॉटम. और तीसरा, किसी फैमिली के बारे में अगर पहचानना हो या जानना हो, गो टू देयर किचन. वो किचन पूरी कहानी बता देगा आपको. सो किचन टेल्स यू द स्टोरी ऑफ एनी हाउस. इट्स दैट ट्रांसपेरेंट. सो अब किचन को अगर हेल्दी नहीं रखा, अगर किचन को नीट टाइडी क्लीन नहीं रखा, अगर किचन से हमने वो फ्रीक्वेंसी नहीं दी जो घर पे जा रही है, तो होल हाउस विल बी डिसबैलेंस्ड. सो किचन इज हार्ट एंड दैट शुड बी केप्ट हेल्दी एंड पंपिंग. नेक्स्ट इज सेट इन ऑर्डर. पहला हुआ सॉर्टिंग. सॉर्टिंग का मतलब अनवांटेड चीजों से छुटकारा पाइए. अब आता है सेट इन ऑर्डर. तो अब जितनी चीजें बचती हैं आपके पास, दे आर ऑल इंपॉर्टेंट बिकॉज यू नो, बिकॉज उनके बगैर काम नहीं चलेगा. तो दे आर ऑल इंपॉर्टेंट. तो वी नीड टू गिव एड्रेस टू ईच एंड एवरीथिंग. वी नीड टू गिव अ प्लेस इन अवर किचन टू ईच एंड एवरीथिंग. वी नीड टू लेबल देम कि वो नमक है, कि आटा है, कि मैदा है, कि पिसी शक्कर है. कि अगर नमक और बेकिंग सोडा साथ में है तो चखना ना पड़े कि उसमें से बेकिंग सोडा कौन सी और नमक कौन सा है. तो इट्स लाइक लेबलिंग ईच एंड एवरी स्टफ. इससे होगा क्या? व्हाट 5S इज गिविंग, इफ लेबलिंग हैज बीन डन, तो जिस समय जिस चीज की जरूरत आपको जिस वक्त जहां होगी वो वहां मिल जाएगी. So that's a particular address you are giving to a particular thing, and labeling makes your life easier. सेट इन ऑर्डर का एक और मैं पहचान बताना चाहती हूँ कि सेट इन ऑर्डर अगर आपके किचन में आपने अप्लाई कर दिया, इफ यू अप्लाइड सेट इन ऑर्डर, फॉर एग्जाम्पल अ न्यू पर्सन कम टू योर किचन. आप मैम अपने किचन में काम करते हो और आपकी बहन बहुत सालों बाद आपके किचन में आती है और आप कोई परेशान कर देते, चाय की पत्ती कहाँ है, नमक कहाँ है, चाय कैसे बनाओ, ये कहाँ रखा है, भगोना कहाँ रखा है. तो इट्स लाइक टोटल टाइम वेस्ट ऑफ दैट पर्सन ऑन माइन ऑल्सो ना. तो कोई भी नया इंसान इजिली उस चीज को मैनेज कर लेगा. तो सेटिंग इन ऑर्डर ऑफ योर किचन, सेकेंड एस इज दैट कि कोई भी नया इंसान अगर आपके किचन में आता है तो उसको आपसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो चीज कहाँ रखी है. तो दैट इज सेट इन ऑर्डर. दैट इज सेकेंड एस ऑफ अस. सो नाउ थर्ड इज शाइन. दिस इज माई फेवरेट. एज अ शेफ आई कैनॉट, मैं नहीं रह सकती इसके बगैर. तो शाइन एंड मैनेजमेंट. अब मैनेजमेंट ऑफ व्हाट? शाइन मीन्स क्लीनिंग. कोई भी जगह क्लीन रहेगी, चमकाना, क्लीन करना. अब शाइनिंग का मेन एम होता है कि हाउ टू कीप एवरीथिंग इन हाइजीन. बिकॉज किचन अगर गंदा है तो वो सबसे रिस्की प्लेस हो सकती है पूरे घर की. बिकॉज फ्रॉम देयर वी कैन गेट कंटामिनेटेड,
we can get pests and even food poisoning. So this is the very important thing, to keep your kitchen so hygienic so that you won't be getting any sort of food poisoning from your kitchen. So shine is a very important thing. Second, improving. अब इसमें अगर मैं बोलूं कि सेकंड पार्ट मैंने इसमें ऐड इसलिए किया क्योंकि जब हम सफाई करते हैं तो सफाई के साथ साथ जो गैजेट्स हम यूज करते हैं, वो हैंड ग्राइंडर्स हो सकते हैं, मिक्सचर्स हो सकते हैं, चॉपर्स हो सकते हैं, अगर वो अपडेटेड नहीं है, अगर नाइफ्स शार्प नहीं है, तो दे आर ऑल्सो वेस्टिंग योर टाइम एट दैट पॉइंट व्हेन एवर यू आर नीडिंग देम द मोस्ट. गेस्ट बैठे हैं, कोल्ड कॉफी बनानी है, ग्राइंडर ही नहीं चल रहा है, सो दैट गिव यू अगेन स्ट्रेस. तो ये जो 5S है, तो एक्चुअली ये बड़े S को दूर करने के लिए है, मुझे ऐसा लगता है. दैट 5S हैज टू रिमूव bigger S, that is stress in kitchen, as I can connect. So by this shine, the third point, cleaning and improving, getting your gadgets right on time whenever needed. आपकी एनर्जी लेवल कम नहीं होगी, आपको स्ट्रेस नहीं होगा, आपको हमेशा साफ सुथरा लगेगा. यू कैन बाय दिस, यू कैन चेक ऑन द पेस्ट कि अभी, और इससे और भी ऐसी चीज़ें होती हैं जब आप क्लीनिंग कर रहे होते हो तो बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं जो खराब हो रहे होते हैं, माइट बी आपके उस स्टेप से वो बच सके. सो अगेन अ लॉट ऑफ वेस्ट हैज बीन मैनेज्ड बाय दिस शाइन. नेक्स्ट स्टेप इज स्टैंडर्डाइज. अब स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स जो ये 3S है, सॉर्ट, सेट इन प्लेस एंड शाइन, इसको एक रूल की तरह क्रिएट करना अपने घर में. अच्छा एक बात बताइए, आप अपने किचन में जाते हो, आपको तो पता है आपके किचन में कहां क्या रखा है, आपके बेटे और बेटी को पता है, सब कुछ पता है. वो कभी नहीं पूछता मम्मा ये कहां है, वो कहां है, ऐसा कुछ. एंड हस्बैंड नहीं, कोई और, मतलब जो घर में दादा दादी, एनीवन. लेकिन स्टैंडर्डाइज का मतलब ये है कि किचन में एक फीमेल या एक जो बंदी जो रिस्पॉन्सिबल फॉर किचन है, क्या उसी को सब कुछ पता होना चाहिए कि कहां क्या रखा है? क्या उसका टाइम वैल्यूएबल नहीं है? Think you are having a research, you're writing a book, or you are listening to a very important video, and somebody says दाल कहाँ रखी है, मिल नहीं रहा है, and you have to go to the kitchen, ढूंढो, उसको दो, और फिर जब आप वापस आओ तो जिस थॉट में आप थे वो थॉट रही नहीं. मैं बस इतना चाहती हूं कि क्या लोगों को ये नहीं समझ में आता, या घर के लोगों को ये नहीं समझ में आता कि एक लेडी जो किचन में रहती है, जो प्रोफेशनली भी एक्टिव है, उसका टाइम वैल्यूएबल नहीं है. या इट इज सुपर वैल्यूएबल. मुझे लगता है उस लेडी का टाइम उन पूरे घर वालों से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो दिन भर मैनेज कर रही होती है फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, कि उसे उसका वाला टाइम मिल जाए. और उसके वाले टाइम में से अगर कोई आके पूछे चाय की पत्ती कहाँ रखी है, या मैगी कहाँ रखी है, या बिस्किट खत्म हो गए हैं वो कहाँ रखे हैं, तो इट इज वेस्ट ऑफ हर वैल्यूएबल टाइम. सो दैट्स दैट. सो स्टैंडर्डाइज करने का मतलब ये है कि वी हैव टू सेट सम रूल्स फॉर समथिंग. ऐसा नहीं है कि सारी चीजें हम अपनी दे देंगे, हम नहीं दे सकते हैं, वी कैन नॉट, बट एटलीस्ट सम रूल्स शुड बी सेट in kitchen or outside kitchen in our home. For example, you have to give the duty कि सब कुछ मैं नहीं कर सकती, you have to do it too. मुझे पता है कि ग्लास की जगह ये है, मैंने बना दी, I labeled that this is the place where glass has to be kept. This is the place where crockery has to be kept. So is that my duty to keep that crockery or glass at a place, or the duty of whole family to keep that thing at that place? Yeah? Everybody. So इससे क्या होगा? इससे मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये रूल से उनको ये समझ में आएगा कि हमें कहाँ क्या रखना है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये बढ़ाएगा सेंसिटिविटी. एक इंसान के प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाएगा. यू नो, इफ माई मदर इज डूइंग ऑल डे लॉन्ग, सारा दिन काम कर रही है, एंड इफ आई एम द बॉय ऑफ माई फैमिली, अगर मैंने 2 ग्लासेस वॉश करके अपनी जगह पे रख दिए, तो हाउ हैप्पी माई मदर विल बी. या बट सेटिंग सम स्टैंडर्डाइजेशन कि डस्टबिन्स कौन रखेगा बाहर, यू नो, पेट्स को कौन खाना खिलाएगा, डॉग को कौन बाहर ले जाएगा, यू नो, these things should be set as a rule for a woman, by a woman at her home. Everybody has to know their small little duties
so that a woman or a homemaker can get a bit of time for herself, right? So this gives you sensitivity for the person who is doing work in the kitchen. So next slide is sustain. Do without being told. That means sustain का मतलब है कि जितने भी rules and regulations हमने बनाए, that should be obeyed by everyone and that should be taken as a habit to the bigger ones. आपके बेटे ने आज बॉटल भरी, आज आइस ट्रेस भरी, उसके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, तो क्या जब वो घर से बाहर जाएगा, अपने वर्क प्लेस पे जाएगा, अपने बिजनेस खड़े करेगा, तो क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सेंसिटिविटी इसको काम नहीं आएगी? So I'm just telling, we have started with a humble 5S kitchen, but it is going to there where you are creating a self-discipline and sensitivity into you and to your family members. A lot of benefits are there with 5S. इसमें सबसे important ये है कि it reduces stress. Obviously जब चीजें मैनेज होंगी, चीजें जगह पे मिलेंगी, it will reduce your stress. जब भी आप किचन में जाओगे, you are seeing things kept in order. आपका किचन थोड़ा सा खाली सा होगा, जहां खाली होगा ना वहां ग्रीन प्लांटर डाल देंगे हम. इट गिव्स यू स्माइल, यू नो, इट गिव्स यू हैप्पीनेस. सो खाली करना है किचन, इट गिव्स यू लेस स्ट्रेस. कम चीजें, कम स्ट्रेस, राइट? नेक्स्ट इज इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम. जब चीजें आपको इजी जगह पे मिल जाती हैं, आप इजीली हैंडल कर लेते हो, कुकिंग फास्ट हो जाती है, लॉट ऑफ टाइम बचता है, तो आप बाकी चीजें भी अपने लाइफ में ला सकते हो. यू कैन राइट अ बुक, कम ऑन, सेव अ लॉट ऑफ टाइम फ्रॉम द किचन एंड राइट अ बुक. यू कैन. थर्ड इज इट रिड्यूसेस वेस्ट. इट रिड्यूसेस वेस्ट ऑफ जो कि चीजें एक्सपायरी हो गई या खाना वेस्ट हो गया. कोई भी चीज जब आप मिसमैनेज रहते हो तो इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ वेस्ट. इट सेव्स अ लॉट ऑफ मनी. आपको पता होगा जब आप मिनिमल होगे, आपकी चीज खत्म हो रही है, यू आर हैविंग अ लिस्ट, अब ये लाना है, अब ये लाना है. यू नो, जब सुपरमार्केट जाओगे तो यू नो दैट लिस्ट, और आप सुपरमार्केट में सिर्फ वही लिस्ट कंप्लीट करने जाओगे. इधर उधर घूमने की जगह पे यू जस्ट फिल अप योर लिस्ट एंड कम बैक. सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड मनी. जितना ज्यादा सुपरमार्केट में रहोगे उतना ज्यादा पैसा खर्च होगा. प्लीज जाओ, लिस्ट देखो, काम कंप्लीट करो, वापस आ जाओ, रहो मत. सेव्स अ लॉट ऑफ मनी एंड इट एम्प्टीज अ लॉट ऑफ स्पेस. हैप्पीनेस उसी से आती है, जितना खाली उतना सुंदर. यू नो, स्मूथ वर्क फ्लो होता है इससे, ठीक है. नो कंटामिनेशन, नो फूड पॉइजनिंग, ऑल गैजेट्स एंड इक्विपमेंट्स वर्किंग राइट टाइम पे. पड़ोसी से नहीं लेना पड़ेगा मिक्सर ग्राइंडर. कभी किसी ने लिया? किसी ने लिया? मैंने लिया है. क्योंकि कभी कभी क्या होता है, व्हेन यू आर वर्किंग इन समबडी एल्स किचन, आपको पता ही नहीं होता कि करना क्या है. And this gives you a lot of sense of responsibility and a lot of sensibility. आपके घर के लोगों में धीरे धीरे ही करके, लेकिन ये सेंसेस आना शुरू हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी. मेरी भी कुछ ड्यूटी बनती है, और इससे बहुत बड़ा फैक्ट ये निकलेगा कि आपका बच्चा या आपका पति या आपका जो भी रिलेटिव होगा, दे नो हाउ मच टफ दिस किचन इज, एंड माई मदर एंड माई सिस्टर एंड माई daughter-in-law is doing it. They create, you know, a sense of respect for them too. So this is it. This is 5S. But at the end, इसका सबसे important end point क्या है? मैं नहीं बोलती, मैं नहीं जानती आप लोगों में से कितने प्रोफेशनल्स हैं और कितने होम मेकर्स हैं. हाउ मेनी आर होम मेकर्स हियर? जस्ट डोंट गो एनीवेयर टू वर्क. ओके, आपको लगता है कि आप यू नॉट अर्निंग? आपको लगता है? डू यू रिग्रेट ऑफ नॉट गोइंग एनीवेयर आउट एंड अर्निंग मनी फॉर योर फैमिली? नो, इट्स गुड. नेवर रिग्रेट. बिकॉज जो लेडीज घर पे रहते हैं, दे सेव्स अ लॉट ऑफ मनी. अगर आप उसको कैलकुलेट करोगे ना, तो वो इतना सेव करते हैं जितना तो आप लोगों की कितने लोगों की सैलरी नहीं होगी. वो इतना एक महीने में सेव कर लेते हैं. सो एट द एंड, मैं बाकी सब चीज़ें ठीक है, 5S आपने सुन लिया, कैसे मैनेज करना है सुन लिया, मनी सेव्ड इज मनी अर्नड सुन लिया. बट एट द एंड एज अ शेफ, एक शेफ के नाते भी एक बात आपको बोलना चाहूंगी. एज अ ह्यूमैनिटी, व्हेन यू डोंट वेस्ट योर टाइम
your food, or any of the resource, आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो, बहुत बड़ा काम। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्लोजिंग फैक्ट ये है कि रोज, जस्ट लिसन टू दिस फैक्ट, रोज 811 million people are sleeping without having food. Just imagine 10% of the world's population रोज बिना खाए सोती है. They are sleeping hungry. So from where does it start? It starts from your little humble kitchens. Not to waste, manage yourself, be a minimalist, and have that sense of responsibility and sensibility, not for your family, not for your society, but for the world. So this is it.